अवतार मेहर बाबा की जय. Jai Baba, everybody. Thank you for joining us this Thursday session. We'll begin with a short prayer. Janice, could you do the prayer, please? Beloved Avatar, Meher Baba ki jai. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Thank you, Baba. Uh, Before we commence our program, I'd like to invite our one and only Lord Meher Baba to please come and join us. And also take over the entire proceedings of this program. Let each word be spoken, Baba, let each word be spoken as per your wish. Thank you and Jai Baba. हम अभी प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं. उसके पहले मुझे एक आध दो चीज़ के अनाउंसमेंट्स करने हैं. पहली चीज़ तो ये कि आप में से कितने लोग अमर तिथि पे आए थे. ये जैनिस ने हाथ ऊपर किया. फरा केरावाला आई थी. पता नहीं निमेश सोमानी आए थे. रेनू रवि डेफिनेटली आई थी. आशा जी आए थे. अच्छा, आप लोग में से कितने लोगों ने वो जो इंफॉर्मेशन काउंटर्स वगैरह है वहाँ जाके कुछ भी देखा? How many of you visited the information counter? Did you? Okay. जो लोग ने नहीं देखा, they really missed something, because from this visit to that information center, I came across this gem called Renu Ravi. क्योंकि इन्होंने एक इतना सुंदर बच्चे लोग के लिए स्टॉल बनाया था. Being a Montessori teacher in the background, उन्होंने मेरे को भी उल्लू बनाया पहले ब्लाइंड फोल्ड करके वो बाबा का फ्लैग चिटकाने के लिए. પછી उसको दया आई तो मेरे को प्रॉम्प्टिंग करके बोला जरा नीचे आओ नीचे आओ. I'll never forget all this. And the main person responsible for all this is Ganesh, who along with Peter Nordin had taken a lot of trouble. उन्होंने बहुत मेहनत करके वो जो मॉडल्स वगैरह क्रिएट किए थे, they were really really nice. और मुझे दुख इस बात का है कि not very many people visited these stalls. कभी कभी हम ऐसे समझते हैं कि इसमें क्या देखने का है, बाबा के फोटोज होंगे, ये हो गया, हम तो सब कुछ जानते हैं. In Baba's love and in Baba's ways of doing things, there is never enough.
हमेशा कुछ न कुछ नई चीज जानने को मिलती है। कोई न कोई नया बंदा मिल जाता है, कोई नई बातें बताता है, whatever. तो that is how I stumbled across this बच्चे लोग का स्टॉल, और वहाँ पे ये रेनू रवि was in charge along with her mother. तो वो सब देखा, और उसके बाद पता नहीं what made Ganesh say this, कि please request her to come and attend one of our Thursday programs. Now when this thing happens, I take it as Baba's prompting. वो बाबा ही कहलाते हैं. So I straight away asked Renu ji कि भाई will you do it? And she gladly agreed without making any fuss whatsoever. ये जो तैयारी है to serve Baba in any which way one can, this is what impresses me the most. Because oftentimes I've come across people बहाने निकालते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, मैं तो काम पे हूँ, मैं तो ये हूँ. Some of them may be having valid reasons. I don't say no. I try to ask a person 3 times, 3 different Thursdays. उसके बाद मैं चौगरी मार देता हूँ. उसके बाद मैं उनको कभी वापस पूछता नहीं हूँ. Because बाबा के प्रेम में एक्सक्यूज दे के निकल जाना is not on. Very simple. Anyway, enough of my भाषण. अभी हम आपको आज के स्पीकर को इंट्रोड्यूस करते हैं. Her name is Renu Ravi. She is from Bangalore. Very sweet young lady. उन्होंने 2013 में क्रिसमस के दिन को बाबा के समाधि पे सर झुकाया था. और जब मैंने ये पढ़ा तो आई फेल्ट कि शी पुट हर हेड ऑन द समाधि on 25th of December, and she found the living Jesus Christ of this age. That is what it is. हम लोग ये समझ नहीं सकते हैं because our minds are very small, and God को perceive करना, God and His ways we don't really understand much. But this is exactly how God works. He brings us to Him in the most casual manner, and then what happens is what we will have to listen from and hear from this young lady. So please take over, and once again a very big thank you for coming on our show. Jai Baba. Okay. अवतार मेहर बाबा की जय. Am I audible, uncle? Is it हाँ clear? जी, हाँ जी. हाँ, ठीक है. जरा जोर से दम लगा के बोलो. Okay. Be lively. हाँ. Okay, yeah. So I would like to say from my childhood stories also, because it is really related to Meher Baba A and bit louder, how. please, because I'm deaf. Okay, I will come closer to that. Is it clear now, uncle? Is it loud? अभी ठीक है? अरे जरा आपके आवाज में दम डालो नहीं. जय बाबा अंकल, अभी ठीक है? Put some life in your voice. अंकल अभी सुनाई दे रहा है? हाँ. ओके. Yeah. ठीक है. तो एक्चुअली आई कम फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल ब्राह्मण फैमिली फ्रॉम बैंगलोर. सो इतना ट्रेडिशनल कि साईं बाबा या कोई भी गुरु को मानते ही नहीं थे. इट वॉज टोटली विष्णु और द आइडल वर्शिप, ऐसा था.
So totally a traditional and in a joint family, and I come from a musical background also. बहुत विद्वान थे. वीणा जो था वो गोल्डन स्ट्रिंग्स में था, और वो मैसूर महाराज जो थे उनके सामने they used to play veena in front of them. So they were all very good scholars, used to have a competition in Sanskrit. They are so well versed in music, sangeet, and everything. So I always used to feel that competition, and that जो उनके इसमें घमंड था, ego था, was so much that they never used to talk with compassionate से, या किसी के साथ बात करना कभी नहीं देखा मैंने. So, but I used to take, refugee in, like, always in temple. So temple was my real home actually, because it was a joint family. So मैं हर वक्त temple जाया करती थी with my grandmother, and she used to tell me lot of stories about God and goddesses. So I was so fascinated with those stories. कि कैसे how Ganesh ji came, and about the Shiva or about the Vishnu and everything. So I used to attend pravachan at the very young age. On 5-year-old, 6-year-old, I used to accompany her, and I used to sit next to her and quietly sit and listen to those pravachans and everything. सब लोग चिढ़ाते थे, इसको क्यों लेकर आते हो ये बुड्ढे लोगों का बीच में, you can just go and play outside. But I used to sit and try to understand what they're trying to tell. Okay, so that was really, those bhajans, those sounds and everything was always so fascinating for me, and I used to spend a lot of time there. बाकी मेरी सब cousins जो थे वो पढ़ाई में बहुत खुश थे, but I used to feel there is no liveliness over there, whereas outside कितना अच्छा है. When you come to temple, you can see the lights, जो दिया decoration, that was typical Brahmin type of thing, and they used to follow all the rituals. So किसी को टच नहीं करना, ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, बहुत था. But I used to manage with all those things. लेकिन कितना माइथोलॉजिकल मूवीज भी देखती थी, वो बहुत इम्पैक्ट होता था मेरे ऊपर. एंड सबसे ज्यादा तो आई वॉच्ड दैट भक्त प्रहलाद का जो था वो मैंने देखा था. That was about वो नरसिंह स्वामी, how that Narasimha with the lion face comes out of the pillar, he manifest. So that was really very scary actually, because I was very small, and when I saw that, oh my God, even God gets so much anger में, देख नहीं सकते ना भगवान को, इतना गुस्से में दिखाई दे रहे थे. Then I told my grandmother कि इतना गुस्सा भगवान को आता है क्या, because I have seen all शांत मूर्ति जो हिलता नहीं है, लेकिन ये भगवान कैसे इतना क्रूर और इतना गुस्से में से, the way he came out of that pillar. Then she said, because Prahalad, his father, then she said all those history. Then from that, what deep impact क्या हुआ मेरे दिल पर, कि आप जब भी याद करो भगवान को, वो he will answer, he will come to you. So वो लगातार इतना और ज्यादा मूवीज देखने को बहुत मन करने लगा. Then I watched रामायण, महाभारत तो कभी मिस नहीं करती थी. संडेज के दिन इतना छोटू सा टीवी था, ब्लैक एंड वाइट, उसमें भी बैठ के समझने की कोशिश, बिकॉज इट वॉज इन हिंदी. सो देन धीरे धीरे माई फादर यूज टू एक्सप्लेन इट टू मी, एंड नो बडी यूज टू सिट नेक्स्ट टू मी. मैं अकेली थी जो हमेशा ये रामायण महाभारत, सो पीपल यूज टू मेक फन ऑफ इट, लाइक इसको इसमें डालो, उसमें डालो, इसको संगीत में नहीं जाना है, डांस नहीं सीखना है. लेकिन मुझे वो कंपटीशन चाहिए ही नहीं था. दैट द वे दे आर्ग्यू, दैट ईगो इतना आ जाता है कि मुझे आता है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था उन लोगों से, ऑल दोज पीपल. देन स्लोली बहुत सारे मूवीज देखती थी, एंड व्हेन आई सॉ शिवा आल्सो डांसिंग, देन आई थॉट यस, मुझे भी सीखना चाहिए ये कला, बिकॉज खुद भगवान इज डांसिंग. That's such a beautiful art form, and people think that dance is something else, like बहुत cheap समझते हैं, लेकिन ये डांस तो कितना खूबसूरत है. Even Lord Shiva dances so beautifully. Like then I started learning Bharatanatyam also. Then धीरे धीरे ऐसा हुआ, बहुत सारी चीजें हुई. My grandfather was a chartered accountant at that time, so he used to write lot of accounts in Sai Baba इसमें मंदिर में. सो देर इवन साई बाबा को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते थे इन बैंगलोर, सेइंग दैट ये तो मुसलमान होगा, अल्लाह अल्लाह कहता है, सबका मालिक एक कैसे हो सकता है, ऑल दिस थिंग्स दे यूज्ड टू कमेंट. एंड नाउ हर जगह साई बाबा का टेम्पल है. सो पहले तो वो लोग मानते ही नहीं थे.
then because I don't know how, because of Radhakrishna Swamiji, he came from south, and he spread about Sai Baba's messages, about his simplicity and everything. So first time मैंने जब साई बाबा को देखा तो इतना अच्छा लगा. The simplicity, the way the sitting posture was so beautiful. It was so like ऐसा लगा इतना शांत, इतना simplicity. भगवान हमेशा मैंने फूलों से ढकते हुए देखा है, और everything was in black. कैसा मूर्ति रहता है, काला ही रहता है. एंड बाबा का मूर्ति तो बहुत मार्बल से चमक रहा था. आई थॉट ये भगवान भी कितने अच्छे हैं, लेट मी गो डेली वहां पे जाना. अगेन आई स्टार्टेड. Then when I come to ninth standard, my father said, "You're every day going to temple. Now you're going to be in 10th standard. Public exam लिखना है. Why don't you focus on your studies?" I said, "He will write the exam. You don't worry. मैं लिख दूंगी." तो even the वो सब बहुत tough था वैसे. There the 7th was also public and 10th was also public, but still I used to go to Sai Baba temple every day. I started conversing him, telling him about everything what is happening in the school, all those things. Because school में एक इसमें मैं सबकी favorite थी, because I used to participate in all the skits, dramas, cultural activities में मुझे हमेशा पहले लेते थे. So राम का रोल करना, or to do any Durga's part or anything. I was very well versed in all those skills वगैरह उस time. So उसमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता. So they used to tell me these are the important questions. Please तुम पढ़ लो, तुम ये पढ़ लो. So I used to get help from everywhere. So I used to think Baba is helping me anyway. So I took it very lightly. Studies को मैंने बहुत lightly लिया. एक मिनट रेनू, since you have all these talents, I feel prompted to tell you to organize a group in Bangalore where you do Baba's plays, you know, छोटे छोटे इन बाबा प्रोग्राम्स में आप लोग कोई भी एक सब्जेक्ट लेके बाबा के बारे में प्ले लिख के बनाइए. It will be Uncle, yeah, I've started that actually. oh And very also, good. yeah, recently वो भी वहाँ पर भी मैंने start किया है, like tea with Mehra. So we are going to have all the ladies gather together. We talk about Mehra and we do something like acting like Mehra, or dress up like women mandali, and to share some stories about them. So I recently started that as well. Good, very good. Yeah. So that's how my childhood was. And then I somehow passed. अच्छे number से pass भी हो गई. And I was happy with that 60%, 70%. I just said, I have passed. It's more than enough. Then suddenly we shifted to Nagpur because it was a transferable job. He was in the central government, so we got transferred to Nagpur. Nagpur जाने के बाद I started missing everything because it was in a remote area, the quarters, because it was the thermal power station used to be in outskirts. It was away from the city. So कोई टेम्पल वेम्पल नहीं था, लेकिन हमेशा हनुमान का टेम्पल दिखता था, दुर्गा देवी का टेम्पल दिखता. आई स्टार्टेड मिसिंग सो मच. बट स्टिल बिकॉज सिंस माई फादर्स वो उनका जो पोजीशन बहुत अच्छा था एज एन अकाउंट्स ऑफिसर, सो हमें फ्री व्हीकल्स मिलता था. तो उसमें मैं नियर एयरपोर्ट, इट वॉज वेरी फार, सो वहाँ पे थर्सडे चली जाती थी. सो ऐसे ही हुआ. देन वी शिफ्टेड टू, देन वी गॉट ट्रांसफर टू हैदराबाद. Hyderabad, I studied in Usmania University, Kukoti Women's College में मेरा admission हो गया. Adjacent to that, there was Meher Baba Center. But I was not knowing anything about Meher. मैंने कभी bother भी नहीं किया कि देखो बोर्ड पे क्या लिखा है. Because on the way, I used to chant Meher Chalisa नहीं, Sai Chalisa used to chant, Hanuman Chalisa used to say. So कहीं इधर उधर नहीं देखती थी. So सीधा चलिए, पता ही नहीं, 3 साल ग्रेजुएशन I did there. But कभी पता नहीं था कि मेहर बाबा का सेंटर उधर है. What a loss, like 3 years वहीं पे रोज आना जाना होता था, लेकिन कभी बाबा की तरफ देखा ही नहीं, पता भी नहीं चला. Then Hyderabad के बाद, then finally after graduation everything, then I enrolled myself to see articleship, everything वो सब हो गया. फिर बैंगलोर वापस आ गए. Then again back to Sai Satcharitra, everything. Then again I started my routine. फिर शादी होने के बाद जो टर्निंग मेरे लाइफ में हुआ, आई मेट रवि फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही सेड मुझे बहुत स्पिरिचुअल वाइफ चाहिए. तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, बिकॉज एट दैट टाइम this kind of resources were not available where they can
like what Baba's books are there, it's for the layman also can understand what Baba is saying. He comes down to our level and make us understand what he's trying to tell. बाकी सब बुक्स जो था मेरे इसमें मेरे घर में, तो आई फेल्ट मेरे समझ के बाहर है, ये तो मैं नहीं समझ सकती. सो स्पिरिचुअलिटी, उसने कहा, मैंने गॉड को पूछा था कि मुझे स्पिरिचुअल वाइफ चाहिए, आई विल टेक यू टू दैट मठ. तो मैं तो खुश हो गई, ओ मठ को लेके जा रहे हैं, और क्या चाहिए मुझे. देन इट वाज रामकृष्ण परमहंस मठ था. तो वी वेंट देयर एंड देयर वाज अ शारदा देवी's photo. He said, I literally asked her that my life, I need a spiritual wife. So you have come into my life. He introduced everything. Then ऐसे ही वक्त बीत गया. हम लोग पूरा बच्चा होने से पहले भी पूरा दिव्य दर्शन को गए. वी वेंट टू तमिलनाडु, सी ऑल द टेम्पल्स ऑफ विष्णु भगवान. कहाँ कहाँ पे विष्णु भगवान लेटे हुए, सोते हुए, खड़े हुए, सभी टेम्पल, सिर्फ यही घूमना था. Then we went to Udupi, we saw Krishna. So all totally was into this only. And my father-in-law used to tell me that you should only, perform puja like only to Krishna, not to Sai Baba. Why you keep that idol and all here? So then my husband said, no, no, बचपन से ही इसको मानती आई, उसको रहने दो. उस वक्त एक डाउट आया था, इतना सारा भगवान कैसे आ गए और क्यों आ गए, और सबको इन पर यकीन में, इनके ऊपर यकीन नहीं है. साईं बाबा के ऊपर एक विश्वास नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान के ऊपर है. शिव को नहीं मानते, लेकिन कृष्ण भगवान को मानते. हाउ इज इट, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, हाउ डू यू नो दैट ही इज नॉट गॉड एंड हाउ डू यू नो दैट ही इज गॉड. तो ये बहुत डाउट तभी कभी कभार आता था कि हाउ, ऐसे क्यों हो गया, इतना कंफ्यूजन क्यों है, वाई पीपल आर लाइक दिस. सो देन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था. फिर ऐसे ही बहुत दिन हो गए, आई स्टार्टेड नोटिसिंग सम चेंज इन रवि. वो बहुत मायूस रहते थे, और बहुत ही स्टार्टेड आइसोलेटिंग फ्रॉम फैमिली, स्टार्टेड सिटिंग अलोन, थिंकिंग ऑल द टाइम. ही यूज्ड टू रीड वन बुक कॉल्ड गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण. सो ही यूज्ड टू रीड रेगुलरली दैट बुक. मुझे लगा इनको क्या हो गया एंड व्हाट इज ही ट्राइंग टू लाइक, क्या चाहिए उन्हें, सब कुछ था. बिकॉज एट द वेरी यंग एज इज वेल ही वॉज अ सीनियर साइंटिस्ट एट Mercedes Benz, and he's a cricket player, marathon runner, and financially we were stable and my family loved him so much. इसके अलावा उनको और चाहिए क्या, क्या ढूंढ रहे वो, इतना क्यों दुखी है. इवन माई ब्रदर नोटिस्ड सेइंग दैट अरे तुम्हारा मैरिज तो गया, बिकॉज ही इज नॉट टॉकिंग टू यू, ही इज बीन आइसोलेटेड, हमेशा दुखी में रहते, जॉब रह गया कि नहीं पता नहीं. तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या ढूंढ रहे हैं. तो हमारा घर जो था वो डुप्लेक्स था. तो मैं एक दिन चुपके से देख रही थी, ये इंटरनेट में क्या सर्च करते रहते हमेशा. ही वाज सर्चिंग फॉर समथिंग विच आई वाज नॉट नोइंग. तो एक दिन उनको जब सभी बुक्स पढ़ रहे थे, तो एक गूगल से पॉपअप हुआ, गॉड स्पीक्स. तो ये 2-3 पेज पढ़े, उसके बाद बंद कर दिया, नीचे आ गए. एंड अगेन द वेरी नेक्स्ट डे ही वेंट एंड ही स्टार्टेड रीडिंग द प्रीवियस पेजेस. एक 7th-8th पेजेस के बाद इमीडिएटली ही फेल्ट दैट ये कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग तो लिख ही नहीं सकता. दिस काइंड ऑफ बुक अदर देन गॉड कोई और लिख ही नहीं सकता. ये कौन लिखा है, लेट मी चेक द ऑथर. सो ही पीछे जाके देखा कि इस बुक का ऑथर कौन है, तो लिखा हुआ था मेहर बाबा. सो एट दैट टाइम ही वॉज वेरी हैप्पी कि क्या इनको क्या चाहिए था, बिकॉज ही वॉज डेस्परेट. ही यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ वेदा, उपनिषद्स एंड भगवद गीता, सब बुक पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी देयर वाज सम इनकम्प्लीटनेस, सम कुछ तो लाइक इनकम्प्लीट लगता था, ये कुछ जवाब कंप्लीट नहीं है. तो उसके बाद देन ही केम एंड ही टोल्ड मी दैट देखो, मैंने कुछ एक चीज मांगता हूं तुमसे, विल यू प्लीज अकम्पनी टू मेहराबाद. आई सेड वाई मेहराबाद, मेहराबाद में क्या है. ही सेड मुझे मेहर बाबा की समाधि पर जाना है. तो मैं बोली फिर से और एक बाबा, तुम कितना बाबा को हम चेंज करते रहेंगे, कितना गॉड को रखा हुआ है, और फिर से भगवान. अभी मुझे कोई बाबा बाबा पे नहीं जाना है. वैसे भी तो नॉर्थ साइड में कितने बाबा है, तो किसको मानेंगे. आई ओनली बिलीव इन साई बाबा, आई डोंट वांट टू कम एनीवेयर. ही सेड तुम साई बाबा को जितना समझी हो ना, उतना ज्यादा समझोगी इफ यू कम टू मेहर बाबा.
फिर मुझे लगा हाँ क्या ऐसे कैसे. सो देन मैंने सोचा यही मौका है, उसको पूरा शर्त लगा देंगे. I told I'm ready to come to Mehrabad. Like, and I have lot of conditions and you have to agree to it. He said, okay, fine. Then you have to be very social. You have to take me to shopping. Will at least हफ्ते में एक बार मुझे मूवी लेके जाना है और सबके साथ हंस के रहना है, ज्यादा बात करना है. क्योंकि हमेशा क्या होता है, मैं 10 सेंटेंस बात करती हूँ, वो एक वर्ड में आंसर. दैट वाज वेरी इरिटेटिंग उनका साथ. तो मैंने सोचा अभी एक मौका है, सब कुछ पूछ लेती हूँ. He agreed for everything. I'll do whatever you say. Just have to keep my forehead on Baba's Samadhi. That's it. तो मैंने मान लिया. Okay, so we had our Wagoner. I would like to have this man on the thing next time. Yeah, next उनको Thursday last game uncle. whenever Yeah, it suits him, I would like to have him. yeah, Something very special about this man is what I feel. yeah. So तो मुझे लगा ओके ठीक है चले जाएंगे, सब कुछ तो मिल रहा है. देन आई आस्क्ड हिम यू हैव टू टेक मी टू कोल्हापुर महालक्ष्मी टेम्पल एंड आई डू लॉट ऑफ शॉपिंग देयर एंड यू शुड नॉट स्टॉप मी, यू शुड हैव पेशेंस टू वेट. ऑल दिस थिंग्स अगर तू अग्री करेगा तो ठीक है, आई कम. ही सेड चलेगा, तू जो बोलेगी यू मेक अ लिस्ट एंड आई साइन इट इफ यू वांट. आई स्टिल हैव दैट, वो है मेरे पास जो उन्होंने कहा है. दैट वो बचपना था मुझ में, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो ठीक है जाए गए, देन हॉल्ट किया, वहाँ वहाँ पे रुके, फिर वी केम टू सतारा पे पास आए. तो देयर वाज अ बाईपास टू मेहराबाद था. मैं रास्ते भर बाबा को इतना क्रिटिसाइज करी, सेइंग दैट अरे तुम तो कहते हो मेहर बाबा ये मेहर बाबा वो, यहाँ पे तो कोई नहीं जानते मेहर बाबा के बारे में. मैं जिससे भी पूछती हूँ मुझे नहीं पता बोलते हैं. मेहर बाबा क्या है, मेहर बाबा क्या होता है वो हमें नहीं पता. किसी ने नहीं बताया मेहर बाबा का. देन आई टोल्ड हिम यू गो टू शिरडी. कोपर गांव में उतरते कि कहते थे अरे यहाँ पे जाओ वहां पे जाओ, एड्रेस बता देते. और मेहर बाबा के बारे में तो कोई नहीं जानता है, तुम किस बाबा को मानते हो पता नहीं. देन रास्ते भर जा रहे थे, आई टोल्ड हिम यू डोंट नो वेयर इज द लोकेशन, और हम घूम रहे फिर रहे, कोई नहीं बता रहे. क्यों चाहिए बाबा, लेट्स गो डायरेक्टली टू शिरडी. देन ही सेड नो नो, लेट्स गो एज पर द प्लान. फिर गए, फिर बाद में काइनेटिक चौक पर हमने स्टॉप किया अहिल्या नगर के पास. देन यश ग्रैंड होटल पे रुके. उस दिन रात बहुत देर हो चुकी थी तो हम लोग सो गए. सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हुआ. ब्रेकफास्ट खाते वक्त माई मदर नोटिस दैट देर इज अ मेहर बाबा's photo over there. She asked me, I think Ravi is looking for this, Baba only, right? Then हाँ यही होंगे बाबा. तो मैंने उनको बताया देखो यही पे है बाबा. Then I asked the receptionist, okay यहाँ से कि कैसे जाना है. Then he told you have to go straight. आप सीधा चले जाए, सीधा रास्ता है, आपको दिख जाएगा मेहराबाद एंड वहाँ पे समाधि का रास्ता है. तो काइनेटिक चौक पर मैं हम लोग स्टार्ट किए. एज ऐसे ही जाते जाते इतना स्टिल लगने लगा कि दिस समथिंग स्पेशल, ये रास्ता बहुत ही अच्छा है. मुझे बहुत काम, दो एंग्जाइटी, गुस्सा जो चिल्लाती थी, इरिटेट होती थी, और सडनली थोड़ा शांत होने लगी. लाइक ओके अच्छा लग रहा है. इवन द हवा भी बहुत अच्छा चल रहा था. क्लाइमेट वाज, इट वाज ऑन क्रिसमस डे ऑन December 25th. सो जब हम जा रहे तो रैंडमली मैंने उसको कहा यहाँ पे रोक दो, किसी को पूछूंगी, हम जा ही रहे कहाँ पे पता नहीं. तो एक घर था, दैट वाज एमपीसी से पहले था, बी हॉस्टल के सामने एक घर था. तो मैं वहाँ पे जाके पूछी कैन यू प्लीज गाइड अस कि कैसे जाना है बाबा के समाज. शी टेल बिफोर दैट गो टू एमपीसी और वहाँ पे यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड देन यू कैन गो टू समाधि. फिर हम एमपीसी गए. एमपीसी जाने के बाद उसमें उस दिन क्रिसमस था तो जीसस का मूवी चल रहा था. सो वी ऑल सैट एंड वी वॉच द मूवी. ही टोल्ड सो मेनी थिंग्स अबाउट मेहर बाबा. वी गॉट द पैम्पलेट्स, फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग. बट आई वॉज नॉट that fascinated to know about Meher Baba. My daughter was very interested because she saw the painting where Upasni Maharaj is, he was striking the stone. He was sitting with the forehead. That painting, she stood and she just asked, "What is this? Why is this poster is here? It's bad too." Because she was just 5-year-old and she asked, "इतने कोई तो भी it's not good to hit someone like this. ऐसे क्यों मार रहे हैं?" Then it was Berry, I think. So he said, how to make this child understand now? This is such a difficult question. Somehow he managed to answer her. फिर वो आंसर करने के बाद he said, you can go to Samadhi and have darshan. So there was a railway track.
रेलवे ट्रैक पे पहले ही हमने एक कार खड़ा कर दिया था वहीं पे. देन वी स्टार्टेड वॉकिंग, वी क्रॉस्ड रेलवे लाइन. एज सुन वी क्रॉस्ड, इतना ऐसा लगता मेरा बचपन लौट आया. आई जस्ट टोल्ड माई डॉटर, विल यू होल्ड माई हैंड, लेट हम लोग भाग के जाते हैं, लेट्स रन. तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने देखा भी नहीं कौन खड़ा है. दोनों भागे समाधि के ऊपर, इतना हंस के. कोई कुछ भी हंसने की कुछ भी नहीं था, फिर भी हंसी आ रहा था. इतना हंसी आ रहा था, आई वॉज लाफिंग कंटिन्यूअसली. एज सुन एज आई एंटर द बोर्ड लाइक टुवर्ड्स समाधि, वो पार्किंग के सामने थोड़ा सा, देर वॉज रिटन लाइक साइलेंस. तो मैंने सोचा अभी शांत हो जाएंगे, बाद में हंसेंगे. तो एक औरत ने हमें ग्रीट किया. शी सेड जय बाबा. आई वाज सो हैप्पी. अरे वाह, अजनबी को भी इतना हंस के कोई जय बाबा कौन बोल सकता है. तो मुझे भी अच्छा लगा, देना ऐसे जय बाबा. फिर समाधि के पास गई. फिर ऐसा तो, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू फील सो इनसिक्योर, बिकॉज जो फादरली फिगर होता है ना, हमेशा आई फील दैट the father should understand that, because my father's was auditing job पे था. वो कभी घर पर नहीं रहते थे. आई यूज टू डिपेंड ऑन माई कजन्स और एज आंटीज एंड अदर थिंग्स, बट कभी उनका फीलिंग लव कभी मैंने महसूस किया ही नहीं. तो मुझे ऑलवेज आई वॉन्टेड दैट फादरली काइंड ऑफ लव. एज सुन एज आई एंटर्ड, ऐसा लगता है अगर शादी के बाद बहुत साल के बाद अगर आप अपने फादर के यहाँ जाते हैं, हाउ डू यू फील सो हैप्पी, सो सिक्योर एंड सो ब्यूटिफुल ना. ऐसी फीलिंग आने लगा. इट्स इट्स लाइक फ्रीडम महसूस करने लगी. बहुत ही अच्छा लग रहा था. इवन द साइलेंस, द जो पत्ते हिल रहा था, वो ड्राई लीव्स एंड ऑल. आई वॉज फीलिंग सो स्पिरिचुअल. व्हेन आई एंटर्ड समाधि, आई स्टार्टेड क्राइंग. इतना अचानक रोना आया. अब तक तो मैं हंस रही थी, अभी मैं नहीं रोऊंगी, आई डोंट वांट टू क्राई. थ्रेशोल्ड पास करके मैं अंदर गई. इतना रोना आया, इतना रोना आया. ठीक से बाबा को भी नहीं देख पा रही हूँ, इतना रोना आया. Then I was crying like a baby, and it was so beautiful, that paintings and everything, blue color का paintings and everything. I was इतना सुंदर. बट बाबा का आइडल ही नहीं है इधर, क्योंकि इतना बचपन से आदत हो गई थी ना आइडल 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 देख के. बाबा को तो कुछ भी नहीं है. एंड this Baba's photo is so beautiful. Even Sai Baba used to sit like that. It's such a motherly welcome and the fatherly thing. तो फिर बहुत रोने के बाद मैं आके नीम ट्री के नीचे बैठ गई थोड़ी देर, टू कंट्रोल, बिकॉज हिकअप्स आ रहे थे. तो मैं बैठ गई. देन माई हस्बैंड ही गेव मी वाटर. मैं उसकी तरफ देख रही हूँ. ये तो इतना तड़प रहे थे मेहर बाबा आने के लिए, इनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे क्यों इतना हो रहा है, वाई आई एम गेटिंग अफेक्टेड. मैं तो चाहती भी नहीं थी कि मेहर बाबा को देखने के लिए आए. एंड ही इज सो काम एंड कूल, ही इज नॉट इवन हैविंग एनी इमोशनल थिंग. जाने दो. फिर देन हम शिरडी चले गए. तो मेहराबाद के बाद मैं बाबा को भूल ही गई. फिर उसके बाद वी वेंट टू शिरडी. उस दिन क्रिसमस, आई वाज सो हैप्पी. यस, मैं साईं मंदिर जा रही हूँ. फिर साईं बाबा के क्यू में खड़ी थी. अचानक याद आने लगा मैं क्यों रोई. आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट इमोशनल ओवरवेलमिंग. क्यों इतना ज्यादा, मैं कितना ऐसे सब बचपन से देखती आ रही हूँ, इतना रोना क्यों आ गया मुझे, वाई डिड आई बिहेव लाइक दैट. फिर क्यों मैं मुझे सच्चरित्र में एक टॉपिक याद आया, वेयर साईं बाबा सेज दैट मेरे पास इतना सारा खजाना है, लेकिन कोई ठीक से मुझे मांगता नहीं है. सब लोग दे वांट जॉब, मनी एंड अबाउट द वाइफ, और शादी होना है, घर चाहिए, ये सब पूछते हैं. रियल ट्रेजर तो कोई नहीं मांगता है, द ज्वेल्स. सो आई थॉट ठीक है, आज मैं कुछ मांग लेती हूँ. बट लुकिंग एट माई हस्बैंड, आई थॉट, Baba, since childhood, I have never asked anything. But today, I'll definitely ask for one thing. Grant him whatever he wants. If it is real longing, please grant him. I will never ask you anything hereafter. उनको दे दीजिए जो चाहिए उनको. अगर इतना तड़प है, मैं नहीं दे सकते ऐसा. उनका तड़प क्या है, यू प्लीज सॉल्व एंड हेल्प हिम एंड गाइड हिम. उसके बाद आई जस्ट प्रेड साइलेंटली. आई डिडंट टेल एनीवन अबाउट दिस. उसके बाद साईं बाबा का दर्शन हुआ. देन अगेन ऑल माय एडवेंचरस का, ये कोल्हापुर गई, शॉपिंग किया. फिर वहाँ पे बहुत सारे मठ गए, बहुत सारे शॉपिंग, नथ खरीदा, ज्वेलरी खरीदी. ही डिडंट से एनीथिंग. आई सॉ चेंजेस. वाओ, इतने कितना फायदा है बाबा के पास आने के बाद. देन सब करने के बाद बैंगलोर वापस आ गए. सो दिसंबर महीना खत्म हो गया. देन कम्स जनवरी के एंड में अगेन ही सेड आई वांट टू गो फॉर अमरतिथि. बोले ये अमरतिथि क्या होता है. देन ही सेड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे.
मुझे जाना है. देन आई सेड सॉरी आई विल नॉट कम, ये तो ज्यादा हो गया तुम्हारा मेहर बाबा. इफ यू वांट टू गो यू कैन गो. लेकिन कोई, बिकॉज ही जस्ट केम टू नो ऑन 28 आई थिंक, सो कोई रिजर्वेशन नहीं था, टिकट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे. सो ही ट्रैवल्ड बाय बस. बस से निकल गए, एक ट्रैक पैंट और एक तक. मुझे लगा क्या जिंदगी है इनकी, हमेशा क्या ढूंढते रहते, पता नहीं. सो ही लेफ्ट एंड ही केम आफ्टर अमर तिथि, हैड वंडरफुल दर्शन. सो उनके साथ गॉड स्पीक्स का बुक लेकर आए एंड विद बाबा का पेंडेंट, ब्रोश, गले पे लगाने का सब कुछ लेकर आए. तो मैं, मेरी माँ भी वहीं पे खड़ी थी. तो उसने कहा अरे वाह, सच अ ब्यूटिफुल पेंडेंट ऑफ मेहर बाबा, शैल आई कीप इट? देन आई सेड कीप इट, मुझे तो चाहिए ही नहीं. Then she took it and she just kept it on her forehead and she said, it's so beautiful. Can I wear it? I said, wear it. तो वो पहनी और जो भी रिमेनिंग था मैंने जाके पूजा मंदिर में रख दिया. फिर पूजा मंदिर में रखने के बाद मैं भी भूल गई. तो फिर मैंने लगा अभी तो खत्म हो गया होगा. फिर मेहर बाबा का अमर तिथि हो गया. Then suddenly on July 10th was a silence day and my birthday falls on silence day. ये बहुत ही इसका ये है. बट इनिशियली मुझे ये पसंद नहीं था बिकॉज ऑन 9th ही लेफ्ट टू बायरामंगला टू ऑब्जर्व साइलेंस. तो मुझे अच्छा नहीं लगा. आई स्टार्टेड थिंकिंग, ये बाबा ना पति पत्नी को अलग कर कर ही रहेंगे. ही इज द वन हु सेपरेट्स, दोनों को अलग करके रहेंगे. मेरे बर्थडे के दिन ही इज गोइंग आउट एंड लिविंग मी अलोन एट होम एंड ही इज ऑब्जर्विंग साइलेंस. फिर साइलेंस खत्म होने के बाद आया, आई सेड ये क्या चल रहा है तुम्हारा मेहर बाबा का मेहर बाबा? देन ही सेड वन वर्ड, मेहर बाबा इज गॉड इन ह्यूमन फॉर्म. if you if you really know, if you want to know, you should read books, then you will understand. मैं बोली किताब में मुझे नहीं पढ़ना है, ये सब इसमें मुझे झंझट में नहीं पढ़ना है. सो बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत इसमें इट वाज नॉट पीसफुल. फैमिली लाइफ में एक दरार जैसे आ जाता है अगर मेहर बाबा को हम नहीं समझेंगे तो. देन सडनली क्या हो गया, इनको 2 years का प्रोजेक्ट जर्मनी में आ गया. तो ही लेफ्ट फॉर जर्मनी फॉर 2 years. 2 years जाने के बाद, बिफोर दैट वी यूज्ड टू रिसाइट परवरदिगार प्रेयर इन फ्रंट ऑफ मेहर बाबा. स्मॉल फोटोग्राफ था उस पे खड़े, बिकॉज मेरे घर में तो पूरा गॉड एंड गॉडेसेस, इस तरफ मुड़ो इस तरफ देखो, हर जगह भगवान ही भगवान थे. एंड आई रियली डोंट नो मैं कहाँ से इतना इकट्ठा करी, ये खुद मुझे भी नहीं मालूम हाउ आई कलेक्टेड सो मेनी थिंग्स. सो देन आई फेल्ट, वो जब चले गए तो मुझे लगा दी ये अलग अलग वेज में नहीं हो सकता है. बिकॉज आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड आई थॉट कुछ तो बात होगा ये मेहर बाबा में. विदाउट लेट मी डू इन्वेस्टिगेशन, ये आने से पहले मैं पता कर कर रहूंगी हु इज मेहर बाबा. तो मुझे लगा ओके लेट मी गो टू सेंटर, बायरामंगला सेंटर. लाइब्रेरी तो है वहाँ पे, बहुत बुक्स भी मिलता है, देखते हैं क्या लिखा है और क्या जानूंगी. सो लकीली आई गॉट बाय बाबाज ग्रेस, मुझे लाइक स्पिरिचुअल ब्रदर, आई गॉट भूषण रोनेकर who always accompanied me. He took me to every savas and हर जगह जाती थी and I started hearing about मेहर बाबा. लेकिन मुझे ये पता करना था हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर गॉड एंड गॉडेसेस, क्या अलग है इसमें. तो देन वहाँ पे ग्लो इंटरनेशनल का बुक, एक 50 years का कलेक्शन एक साथ बंडल में बांध के रखे थे, जो इट वॉज ऑलरेडी टोन एंड इट वॉज येलोइश, द पेज वर नॉट क्लियर. देन ही सेड भाभी आपको लेके जाना है तो ये आप लेके जाओ, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन दिस. हाँ, तो मैंने सोचा ठीक है एंड आई आई गॉट दिस इज दैट सो बुक ऑफ एरिच. सब किताबें लेकर आई. ऐसे भी तो कोई नहीं था घर पे, मैं और मेरी बेटी थे. तो उसी वक्त दसरा का 12 days हॉलीडेज मिला हमको. तो आई थॉट ओके लेट मी रीड बुक्स. सो आई स्टार्टेड रीडिंग. एक से बढ़कर एक स्टोरीज, माय गॉड, बाबा का. ऐसा लगा वाओ, ऐसा क्या है इस बाबा में, इट्स सो मच ऑफ लव. अच्छा, भगवान को प्यार भी किया जा सकता है, डरने की कोई जरूरत नहीं. यू कैन बी सो ह्यूमन, यू कैन बी सो नॉर्मल एंड नेचुरल, नो नीड टू गेट स्केर्ड. और द डिवोशन इट इज हायर देन दैट. व्हाट इज दिस? सो एक स्टोरी आया, दैट इज आई एम नॉट योर फादर. उसमें एक वीडियो आती है बाबा का दर्शन लेने के लिए. तो उसमें वो उसमें बाबा पूछते व्हाई योर मदर इज सो सैड.
उसका नाम अमिया है. सो देन शी आंसर्स सेइंग दैट वो दुखी में है, शी इज अ विडो, और होटल में नहीं रुक सकते बिकॉज उनका खाना हम नहीं खा सकते. वी हैव टू ईट वॉट एवर, अदरवाइज शी हैव टू कुक हरसेल्फ, शी हैज टू ऐसा कुछ फॉलो करना पड़ता है. तो इसलिए हम होटल में नहीं रुके, कजिन के यहाँ रुके हैं. सो बाबा सेड, तुम मुझे पिता मानती हो? देन शी सेज, यस बाबा, यू आर माई फादर. Then, if I'm your father, how can your mother, be a widow? वो सुनने के बाद धड़ 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 आंसू आ गए. सोचा कि ये क्या है, कौन इतना हिम्मत के साथ बोल सकता है, इतना अथॉरिटी के साथ कौन बोल सकता है ऐसा. क्योंकि इतना कुछ सुनने के बाद ही सेड, आई एम द यूनिवर्सल फादर एंड हस्बैंड. ऐसा ऐसा कहाँ कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, कहीं पे भी नहीं सुना है. इट्स सो यूनिक, सो डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटिंग द डिसाइपल्स और द लवर्स. और लवर्स तो फर्स्ट टाइम मैंने सुना है. क्योंकि हमेशा डर में जो जीते थे ना हम लोग, ये सोच के गुस्सा आ जाएगा भगवान को, तीसरी आंख खुल जाएगी और हम भस्म हो जाएंगे, ऐसे ही तो कल्पना में रहते थे. लाइक गॉड, मतलब वी यूज्ड टू इमेजिन हिम एज दैट वे, बट नॉट लाइक दिस. फुल ऑफ लव, so much love that इतना प्यार दिखाया, being highest of the high, he is talking like this. Like, फिर ये स्टोरी सुनने के बाद तो होल डे आई स्टार्टेड, होल नाइट आई वाज क्राइंग. तब भी जो मंकी माइंड रहता ना, जो थिंक करता रहता ऑलवेज, सो आई जस्ट चैलेंज्ड बाबा. बाबा, यू सेड दैट यू कैन बिकम हस्बैंड नाउ, तो नाउ दिस नाइट you become Ravi. I told this to Baba. एंड उसके बाद बिकॉज रवि का एक सोने से पहले एक आदत है कि ही डज लाइक दिस टू मी एवरी डे. सो आई वॉज मिसिंग हिम एज वेल बिकॉज आई वॉज, उस वक्त इतना वाईफाई कनेक्शन भी नहीं था, अपन फ्री से बात कर सकते, एवरीथिंग वॉज चार्जेबल एट दैट टाइम. सो मैं उसको बता नहीं पा रही थी कि ऐसे ऐसा कहानियां हैं. सो देन बाद में मैंने बाबा को बता, तुम रवि बन के दिखाओ, फिर मैं मानती हूँ तुम भगवान हो. फिर मैं लाइट वगैरह ऑफ करके सो गई. सो रात को कब टाइमिंग्स, आई एम नॉट श्योर ऑफ द टाइमिंग, रात को ऐसा लगा कोई तो भी मुझे ऐसा कर रहा है. तो बहुत डर गई. फिर मैं, आई डोंट वांटेड टू, मैं हिली नहीं. फिर सोची ये आवाज कहाँ से आ रहा है. देन अगेन आफ्टर सम टाइम, अच्छे से 1 2 3, दिस इज सेम स्टाइल ऑफ रवि. एक पल के लिए मैं वहां पे इतना डर गई, मैं, मेरा हार्ट ढबा डब 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 होने लगा. आई कुडंट स्लीप. तो मैंने ब्लैंकेट हटा के देखा, कोई छिपकली तो मेरे ऊपर नहीं गिरी. व्हाट इज दैट, समथिंग इट वाज होल्डिंग लाइक दिस. फिर मैंने ब्लैंकेट उठा के ऐसा फेंका. फिर लाइट्स वगैरह सभी जगह जाके ऑन कर ली, किचन में, हॉल में, हर जगह, बिकॉज इट वाज सो स्केरी. फिर बाद में मुझे लगा ऐसे क्यों हो गया, मैं ठीक से सो नहीं पाई, लाइट्स वगैरह ऑन था. फिर सुबह हो गया, थोड़ी देर सोई भी होगी, सुबह हो गया. एज यूजल मेरा रूटीन पे, आई स्टार्टेड माई रूटीन, आई पैक्ड माई फूड एंड आई सेंट विभा टू स्कूल. मैं भी स्कूल की तरफ चले गई और मुझे ये भूल भी गई कि रात को क्या हुआ था. रास्ते में मैं पैदल जा रही थी बिकॉज इट वॉज अ वॉकेबल डिस्टेंस टू माई स्कूल, सो आई टू गो बाई वॉक, एंड पैदल चल के जा रही थी. कुछ आइसक्रीम का ट्रॉली आ रहा था वहां पे, एंड द बेल वॉज रिंगिंग कंटिन्यूसली, टन 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 टन. वो आवाज सुनकर बाकी सब आवाज नम हो गया. आई डोंट नो व्हाई दिस वाज हैपनिंग. देन मुझे लगा ऐसे क्यों हो रहा है मुझे, तो मैंने ऐसे ठीक किया. फिर वही बेल का आवाज सुनाई दे रहा था थोड़ी देर. देन आई स्टूड फॉर अ सेकेंड थिंकिंग दैट ये कुछ तो वर्टिगो होगा, कुछ चक्कर आ रहा होगा, क्योंकि मैं ठीक से सोई नहीं इतने दिन तक. तो किताब में पढ़कर तो मैं 2 3 दिन नहाए भी नहीं, कंटिन्यूसली बुक्स पढ़ती थी टू नो अबाउट मेहर बाबा. तो मुझे तो ऐसा लगा मे बी लैक ऑफ स्लीप की वजह से वीकनेस हुआ होगा. देन सडनली डीप साउंड आया. देन आई रिकलेक्टेड व्हाट आई सेड लास्ट नाइट. आई सेड, बाबा यू बिकम रवि. दैट वाज द सेम स्टाइल, same way of holding, because he's a cricket player and is a marathon runner. I know how hard he hits. कभी अच्छे से नहीं हैंडल करता है, बहुत रफली पकड़ता है, रफली खींचता है. सो ऐसे ही था, ऐसा मतलब
ditto, it was like I was sure that it was Ravi's hand. So वहीं पे खड़े होके 10-15 मिनट I was continuously remembering I shouldn't have challenged this. This is not right to challenge, और ऐसा नहीं कर सकती मैं. सो पूरा ऐसी वक्त गुजर गया स्कूल में. आई वॉज टोटली लॉस्ट, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा था. आई टुक अ ब्रेक एंड आई केम अर्ली होम. आई जस्ट सैड. देन आई रियली थॉट रवि इज गोइंग टू कम बैक इन अनदर 3 months में. मुझ में बदलाव लाना है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यूनाइट्स समथिंग विद such a precious thing in life I've got. I'll remove all the photographs of God. And in that moment also, I was thinking to impress my husband, not Meher Baba. I started removing all God is एक trunk लिया और सभी photos उसमें मैंने डाल दिया, because I was not able to concentrate on Baba. तो सब कुछ डाल दिया उसमें. इतना खूबसूरत कोल्हापुर महालक्ष्मी का, गणपति बाप्पा का सब कुछ था मेरे पास. ऑल ब्यूटीफुल पेंटिंग्स विथ ऑल यूनिक फ्रेम्स लगा के रखे थे. सब कुछ मैंने पैक कर दिया और बाबा को बोला, यू सेड यू आर गॉड नाउ, नथिंग शुड हैपन टू माई फैमिली, बिकॉज इट वॉज ऑन फ्राइडे. सो मैंने लक्ष्मी जी का सब हटा दिया. कहीं फाइनेंशियल ट्रबल आ गया तो, कहीं कुछ कोई बीमार हो गया तो, नो यू आर गॉड, नो डोंट डू एनीथिंग टू माई फैमिली. देन आई पैक्ड एवरीथिंग. फिर मैंने साइड में छुपा के रख दी. बट वन आइडल आई केप्ट, साईं बाबा का एक आइडल रखा था. और मैंने बाबा को कहा, जिस दिन मैं ये साईं बाबा को छोड़कर मेहर बाबा में डीप में चली जाऊंगी ना, उस दिन आई विल रिमूव इवन द साईं बाबा. दैट कन्विक्शन यू हैव टू गिव इट टू मी, दैट आई विल वेट टिल देन, आई विल नॉट रिमूव दिस. तो देन रवि केम. मैंने उनके आंखें बंद करके, चलो आई वुड शो यू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन पूजा रूम. तो वो आए, उन्होंने आंखें खोला और देखा देयर वाज ओनली वन मेहर बाबा's फोटो. He was so happy. He was so happy. He said, जिस दिन मैं मेहराबाद गया, he asked Meher Baba one thing, that make my wife your lover. She should be a Baba lover. You just do that miracle. I will not ask you anything. He said that moment उन्होंने कहा कि मैंने बाबा से ये मांगा था कि मेरी बीवी को बाबा लवर, बाबा प्रेमी बना दो. दैट मिराकल आप कर दीजिए, मेरी जिंदगी में काफी है. क्योंकि मैं बहुत अपोज करती थी, उसको डर था कि मैं कभी बाबा लवर नहीं बन पाऊंगी. देन ही सॉ दैट, ही वाज सो हैप्पी. फिर मैंने सोचा ये डिसरिस्पेक्ट तो नहीं दिखा सकती फोटोज के बारे में. सो आई टोल्ड हिम, लेट्स कैरी दिस, और कोई टेम्पल में विल डोनेट इट. तो आई डोनेटेड ऑल द फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग. इवन आई स्टार्टेड रिसाइटिंग परवर्तिकार प्रेयर एवरी डे एट होम. एक दिन प्रेयर करते वक्त I saw all 5 Sadgurus behind Meher Baba's photograph. Sai Baba, but I didn't see Tajuddin Baba. I saw Hazrat Baba Jan, then Sai Baba, then Upasni Maharaj. I saw that all Sadgurus are behind. It was like a aura behind Baba, and all the Sadgurus are behind him, and he's the ultimate, the present. He's the most powerful one. सो उस दिन के बाद मैंने साईं बाबा का आइडल किसी को गिफ्ट में दे दिया, बिकॉज मैंने बहुत इच्छा से खरीदा था. देन आई गिफ्टेड दैट टू समवन टू टेक केयर ऑफ इट, हु लव्स एंड हु बिलीव्स इन साईं बाबा. सो उस दिन के बाद जब भी एमपीआर जाती हूँ या मेहराबाद जाती हूँ, उस वक्त से फ्रॉम 10 years मैं हर किसी के पीछे भागते रहती हूँ. अपने बाबा को देखा है, क्या एक्सपीरियंस हुआ. लाइक अ क्रेजी, लाइक अ सेलिब्रिटीज दे आर टू मी. लाइक उनके पीछे जाना और उनके बाबा के बारे में पूछना. गिव इन पैंडमिक वी स्टार्टेड रीडिंग मेहरा मेहर बुक, एंड मेहरा के बारे में जानना तो इतना इंटरेस्टिंग लगा. आई एम स्टिल रीडिंग मेहरा मेहर बुक. Then I met Biff and he told me so much about Mehra. इतना ब्यूटिफुल. उसके बाद ना मैं शिरडी गई, ना कभी मैंने पीछे मुड़ कर देखा. With one person, no hypocrisy. I tell every shit to him. Everything, whatever I do. If I feel jealousy, I'll tell Baba, yes, I felt jealous of it. I'm getting angry. I'm getting irritated. I cannot do this. So everything I associate with him. Everything. He is my everything now. मुझे अभी ऐसा फियर नहीं है कि दैट कुछ तो हो जाएगा. वो ऑलवेज आई यूज टू हैव दैट, लेकिन अभी फियरलेस. ही इज माई बिलवेड. आई जस्ट लव बाबा सो मच.
दैट अभी कोई डिफरेंसेस फर्क नहीं पड़ता। मैंने सोचा बाबा ये बदल के दिखाओ मेरे हस्बैंड को, अभी कोई जरूरत नहीं, उसको जैसा है वैसा रहने दो, मैं जो बदलाव मुझ में आया, दैट इज सिंपली ग्रेट। It was amazing experience. And with even with my daughter, because we started, she used to watch Doraemon serial, फिर गॉड स्पीक्स का स्टोरी वो सुनती थी थ्रू महरिशा सर। ही यूज टू कम टू बैंगलोर टू गिव डिस्कोर्सेस एंड अबाउट गॉड स्पीक्स। सो समवेयर शी यू नो बचपन से सुन के उसके दिमाग में विभा को क्या आया कि दैट द डोरेमोन का स्किट बनाएंगे इन गॉड स्पीक्स। सो हमने अमर तिथि पर वो स्किट किया था, where we started associating Doraemon and Meher Baba. It was a very beautiful script. सो बचपन से उसको भी ऐसा लगता था, बिकॉज डोरेमोन में जो जियान का कैरेक्टर है, वॉज वेरी टमी एंड वॉज वेरी हेफ्टी एंड फैट पर्सन। शी हैज ऑल दोज टॉयज था। शी यूज्ड टू टेल मी, मामा देखो बाबा इज लाफिंग लुकिंग एट हिम, बाबा इज सेइंग लुक एट हिज टमी हैज कम आउट, हिज बेली फैट इज सो मच, बाबा हंस रहे। तो मुझे लगता था ये ज्यादा क्योंकि मैं भी तो ऐसी थी ना, आई यूज्ड टू इमेजिन, मुझे लगा ये भी ऐसे इमेजिन करती होगी बाबा के इसमें। सो उसने अपना खुद का टच स्क्रीन बाबा का फोन किया था उसने, वेर बाबा का फोटो चिपका के फोन की तरह। सो ऑलवेज शी यूज्ड टू कॉल बाबा एंड से, बाबा आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ, बाबा आई एम गोइंग टू स्कूल, यू प्लीज कम विथ मी, यू बी विथ मी। सो ऐसे ऐसे बोल के काट के ऐसे ऐसे करती थी। शी वॉज जस्ट 6 ईयर 7 ईयर ओल्ड, ऐसा था। बहुत सारे सवाल उसने मुझे बचपन में ऐसा, मैं भी उसको दिखाती थी महाभारत और ये, तो वो मुझे पूछती थी जो टीवी में आ रहे हैं वो असली भगवान होते हैं क्या? तो मुझे मना कर आई डिडंट वांट टू लाई टू हर, सो आई सेड नो, दे आर enacting the script what is there in the book, he is not the real Krishna. तो देन बाबा के करीब आते आते उसको मैं हर रोज ग्रोइंग अप विद गॉड स्टोरी सुनाती थी, उठते की एवरी डे बिफोर गोइंग टू स्कूल। 9 o'clock वो स्कूल वैन आता था, 7 o'clock को उठाती थी, शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज उसको सुनाती थी फ्रॉम गॉड ब्रदर। फिर वो शीला ककलचुरी का स्टोरीज वगैरह के कहती थी, वो सब उसको बहुत अच्छा लगता था। सो दैट्स हाउ शी क्रिएटेड वन स्टोरी विद डोरेमोन एंड मेहर बाबा का स्टोरी करके उसने वो स्क्रिप्ट। इट्स रियली ब्यूटिफुल एक्चुअली, कैसे वो चींटी सरदा पे ऊपर गई, ऑल दोस लाइक सेंटेंसेस, द स्क्रिप्ट, it was Baba was her voice, I can say that, like ऐसा हो गया था, ब्यूटिफुल, ऑल गोल्डन मेमोरीज। ऐसे बहुत सारे सपने भी आए थे मुझे बीच बीच में, लाइक एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बाबा वॉज मेरे ड्रीम में, इट वाज कहीं तो भी सभी हिंदूज को मार रहे लोग, और इट वाज गैस को सब जगह से ऑन कर दिया था, और दे आर गोइंग टू मैचेस लगा के दे आर गोइंग टू हमको जला देंगे, ऐसा सपना आया था। एंड उस सपने में भी आई वाज टेकिंग मेहर बाबा's नेम, सेइंग दैट ऐसे तो मरने ही वाले हैं, लेट्स टेक मेहर बाबा's नेम। तो आई विल सजेस्ट एवरीवन टू टेक मेहर बाबा, मेहर बाबा। तो उसके बाद वो जला, वो ऐसा ऐसा कर रहा है मैचेस को, लेकिन आग ही नहीं आ रहा था, ऐसा सपना आया। देन आफ्टर द वेरी नेक्स्ट डे आई केम टू नो मेरे घर में गैस का लीकेज 2 दिन से चल रहा है, पूरा किचन में गैस लीक हो रहा है, और वो स्मेल भी आ रहा था, लेकिन इतना दिमाग में नहीं आ रहा कि मेरे घर से आ रहा है। मैंने कितने बार लाइट ऑन किया होगा, कितने बार गैस को जलाया होगा, बट स्टिल बाबा सेव्ड अस फ्रॉम दिस। ये ड्रीम से पता नहीं हाउ टू रिलेट एंड हाउ टू नरेट इट, एंड किस तरह में ये सब कुछ, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि बाबा ड्रीम में आके दैट ही हैज सेव्ड मी मेनी टाइम्स। सो फिर उसके बाद पता चला कि गैस लीक मेरे घर में ही हो रहा है, फिर मैंने वो गैस बंद करके बाहर रखा, फिर उसको ठीक करवाया। सो दैट इज हाउ। उसके बाद एक दिन सपने में देखा कि मोहम्मद मस्त वॉज कमिंग टू माई होम एंड वी वर वेलकमिंग हिम। वो मोहम्मद मस्त आ रहे थे मेरे घर, ऐसा वगैरह सपने आया। तो बहुत सारे ऐसा इंसिडेंट्स हुआ कि बस अभी बाबा के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा लगता है अभी कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं। हस्बैंड कैसे भी रहने दो, उसका रास्ता और मेरा रास्ता इज सेम बट टुवर्ड्स बाबा, but we should have our own individuality. So, loving Baba
is really what a treasure I've got in this life. So तब से मैं, because I was born on 10th July, that's a blessing for me. But कोई विश नहीं करता उस दिन, वो एक बहुत ये होता है क्योंकि सब लोग माउंट पे रहते हैं, सब लोग रहते हैं. सो आई सेलिब्रेटेड द वेरी नेक्स्ट डे. एंड स्कूल में भी सब लोगों को मेहर बाबा के बारे में, और बहुत बच्चों को भी मैं फोटोज दिखाती थी. दोज लाइक स्पेशल नीड्स थे, ऑटिज्म के बच्चे, तो वो सब लोगों को दिखाती थी. दे यूज्ड टू से ही इज माय अंकल. आई यूज्ड टू वंडर ये कैसे बोल सकते हैं बच्चे अंगूठी को देखकर. तो आई स्टार्टेड वेयरिंग, सिंस वी आर नॉट सपोज टू टेक एनी रिलीजन, ब्रिंग इन दैट रिलीजन पाप. इसमें बच्चों के इसमें मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन सभी बहुत सारे जो स्पेशल नीड्स के थे, ऑटिज्म और ये वगैरह, तो वो लोग कहते थे ही इज माई अंकल, और कोई कहता था ही इज माई ब्रदर, ही इज किसने कहा कि ये जादूगर है. एक लड़की ने कहा ही इज अ जादूगर. एक शी वॉज फ्रॉम कश्मीर एक्चुअली. तो वो आई थी, तो मैं उसने ये देखा, तो वो पगड़ी वगैरह डाले है बाबा ये अंगूठी में, तो उसने कहा आई थिंक ही इज अ मैजिशियन मैम, बिकॉज ही इज वेयरिंग दैट टर्बन. वो बहुत अच्छा मैजिक करते होंगे ना. आई सेड यस, बहुत अच्छा मैजिक करते हैं. देन आई टोल्ड हर मेहर बाबाज नेम टू हर. सो दैट वाज अ थिंग. देन तब से अमर तिथि में पार्टिसिपेट करना, डांस करना, स्किट करना. सो आई हैव लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग अमर तिथि. सो दिस इज लाइक जर्नी टुवर्ड्स बाबा. जय बाबा अंकल. इतना जल्दी जय बाबा करके कहाँ भागते हो? Does anyone have any questions? Come on. Okay. Where do you go from here onwards in terms of Baba connection? I still I have to hold his hand, अंकल. ऐसा लगता है इसका दामन बहुत स्लिपरी है. आई एम नॉट श्योर ऑफ इट. वो एक इनसिक्योरिटी अभी भी है मेरे इसमें, क्योंकि द इल्यूशन, लाइक माया इज सो स्ट्रॉन्ग. कभी कभी बाहर की चिंता इतना ज्यादा हो जाता है, कभी कभी लगता है when we trust and when we love Baba, we should not think of all these things, the materialistic life, because lot of ups and downs we see in our job life, everything is so अभी तो ऐसा लगता है बाबा यू घुमा रहे. I can see lot of changes, because while doing a Montessori course, what Mehra did, everything is happening now. जो भी मेहरा ने एम्ब्रॉयडरी, द आर्ट वर्क, इट हैज बिकम द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल नाउ. एंड इट उसका वैल्यू ऐसा हो गया. पहले आर्ट वाज नॉट दैट ग्रेट, दे नेवर यूज टू अप्रिशिएट दो स्किल्स. बट नाउ आप एम्ब्रॉयडरी करो, यू कैन द क्रिएटिविटी इज इन्फिनिट नाउ. द क्रिएटिविटी इज लाइक बोल ही नहीं सकते, इतना ज्यादा है. और बच्चों में भी द तेजपन और द क्रिएटिविटी, एवरीथिंग इज लाइक it is infinite. It is like like ocean, so मुझे ऐसा लगता है इसमें हम कब तक रहेंगे, वो बहुत डर लगता है. To go ahead with Baba is only one thing, to ask him the prayer, the beloved God prayer is there, help us all to love you more and more, that we should really recite it day and night. That is the only thing. इसलिए मुझे कभी कभी बोलने को भी डर लगता है, कहाँ ये हिपोक्रेसी हो जाएगा, हिपोक्रेट में ये सब ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ. किसी को बोलने के लिए भी बहुत हिचकिचाहट होती है मुझसे, लेकिन बोलना पड़ता है, बिकॉज टू टेल समथिंग अबाउट बाबा टू समवन, you have to tell it, appreciate what has happened to you. So कभी कभी लगता है हम लोग ऐसा बोलते लगेंगे, आई नो अबाउट बाबा, आई नो दिस, आई नो दिस. वो तो बोलने के लिए डर ही लगता है कभी कभी, कहीं वो छूट ना जाए हमसे. तो बाबा के साथ मुझे, और आई हैव टू रीड ऑल द बुक्स ऑफ बाबा. गॉड स्पीक्स अभी अभी एक बार मैंने पढ़ा है, लेकिन ऐसा लगता कुछ तो गया होगा दिमाग में, लेकिन ज्यादा नहीं समझा है. बट आई हैव मेड अ फ्यू फ्लैश कार्ड्स फॉर किड्स. नेक्स्ट ईयर अमर तिथि के लिए मैंने सोचा है उनको मैं कहानी पूर्वक बता दूंगी, लाइक कैसे स्टोन फॉर्म हुआ, जर्नी कैसा हुआ, फिर तुम्हें कैसा लगता था. आई शो द फ्लैश कार्ड्स एंड आई ट्राई टू शो देम. अभी भी जब भी मैं बच्चों को मिलती हूँ तो उनको यही कहती हूँ, बिकॉज when you are a bird,
it's very, the molding will be very easy. And when you are very fresh, to offer it to God like a flower, वो कितना सुंदर रहता है, उसका फ्रेग्रेंस रहता है, सब रहता है, लेकिन हम बहुत बुढ़े होने के बाद जाएंगे ना, ही ठीक से देख सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना बाबा का कीर्तन सुन सकते हैं, या टू रीड ऑल दोस वीकनेसेस ऑफ एज ओल्ड थिंग्स कम. सो जब भी दैट इज अ एक थिंग दैट आई वांट टू मेक बेस्ट यूज ऑफ माय ट्रेनिंग इनटू बाबाज वर्क. इसलिए एक बहाना है टू बिकम अ वॉलंटियर इन मेहर इंफॉर्मेशन सेंटर, so that I can focus on children more. And when parents come, I tell them, buy books, start telling them stories about Meher Baba, tell them the fact, the truth, which they have to know at the very young age. हमको तो कभी कुछ नहीं कहा, कि हमेशा डरा दिया था कि भगवान कभी is he's in heaven and he will never come, that kind of a mentality. लेकिन बाबा को प्यार करना, remembrance is so important. That and all I came to know only by reading Baba's book. So reading literature is really very, very important. So मुझे बाबा का काम है, बाबा should really, help me to do this. So want to tell more and more stories to kids and make some creativity out of it, like a theater thing, and tell them. And because Baba has said, he has praised that Burra Katha from Andhra, he said you have to dramatize things, you have to express. So I thought I'll make best use of what I've learned from my childhood. I'll make very beautiful, so that it should have impact on their, it should strike their imagination, and they should really, come to Baba and do a lot of Baba's work. So that is my, abhi aage Baba should take me to all these things. And अंकल, आपके साथ उस दिन जो थे ना, वो कौन थे, मैं पूछना भूल गई वैसे. हाँ जी, क्या क्या? उस दिन मेहराबाद में आपके साथ दो जन थे ना, वो कौन थे? They were just pilgrims from our center, ओके, ओके, ladies, ओके, mother and daughter. They were mother and daughter. ओके, या, तो वो बाकी के सब लोग उस तरफ चले गए. The three of us, we decided to come to information center and all that. And I personally feel that anything and everything that we get is all ordained by him. Archana Grover has raised her hand. She wants to ask something. Go ahead, Archana. Jai Baba Renu. It's जय been बाबा. such a mesmerizing evening listening to your experiences. So, and one thing I must tell you is what has caught me the most is it seems as though Baba has made you the medium to get the new generation into his fold. Because what you're planning to do sounds so interesting and so profound that I'm sure it'll go a long way. You're doing it in a very silent way, but I'm sure it'll reach a lot of the young generation and the children. And I think I would be the first one to get those flashcards from you. Yeah, definitely. I'll get it. Because Beautiful. uh, तो मैंने actually I thought I'll start this year itself, but I was not able to understand like how to create that atmosphere around. Like I want to hang one side full of stones, then worms, plants, सब कुछ डाल के उनको थोड़ा that puzzle kind of thing should come, like to ask why all these things. They should ask why, then Yes, I will be able to, I have to create that, the curiosity, and yes, to even imagine something, we should give some base, for some foundation, some imagination ke liye to I need that support. So next time I absolutely. thought, okay, I'll plan for that and I'll do Yeah, it. a great idea because they are so quick in absorbing. They're like Yeah, little sponges, And I think this would be the best way, even better than, books and comics yeah. and things. This would reach them faster. Lovely, beautiful. Your Jai sharing Baba. was just superb today. Thank you so much, Jai Jai Baba. Baba. Jai Baba. Dilshad Kapadia, go ahead. Jai Baba. Jai Baba. Renu, it was beautiful to listen to you.
You have so much to share and so much of uh, articulation in what you say. Um, Two things I would like to know. One is when you said that Sam Uncle said something about, being blindfolded and something, how he met. So, can you, and the last sentence that you said, which was very, very endearing to me, is that you said every Amar Tithi, there is some dance or some skit that you do. So that's where something very precious. And Yeah. hence, this question as to what did you do, if you can uh, About the throw some. skit? Yes. About the skit. Okay. And second thing, I'll just finish the two questions and then you can take. Second thing is when you are trying to talk about Baba to kids who are very impressionable and the LDs and stuff like that. कभी ऐसा होता है कि माँ बाप बीच में आके टोकते हैं या कुछ कि ये क्यों दीदी आपको बता रही है, और यू मस्ट बी फेसिंग योर ओन challenges in terms of the elders, the young आई मीन द किड्स, जो लोग बच्चे का माइंड तो स्लेट होता है, Yeah. लेकिन जो बड़े हैं उनको आप कैसे डील करती है? और बिफोर आई एंड, दो चीज जो मुझे आइडेंटिफाई होती है आपकी कहानी से, वन इज कि आप जब छोटी थी, राइट थ्रू योर एज ऑफ स्कूल एंड अपब्रिंगिंग, यू बीन वेरी वेरी गॉड कॉन्शियस. I have also had my own share of those struggles. And Okay. second thing about having the father figure, that regret of not, that also touches me very deeply as I identify with it. So, Renu, more power to you, and thank you so much for sharing. Jai Meher Baba. जय मेहर बाबा या फादर की तो मैं बहुत ये करती हूँ बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर सो मेनी इंसिडेंट्स आई यूज टू लॉन्ग फॉर फादर्स लव फ्रैंकली स्पीकिंग बिकॉज आई हैव टू बी ओपन हियर बिकॉज जब मैं मेहर बाबा को देखा ना तब ऐसा लगा बाबा प्लीज कम एंड होल्ड माई हैंड वंस बिकॉज ऑलवेज आई यूज टू रन टू होल्ड माई फादर्स हैंड हैंड यूज टू टेल मी अरे पूरा आयरन खराब हो जाएगा तो बहुत दुख होता था एंड व्हेन आई यूज्ड टू सी अदर्स लाइक हाउ दे क्लिंग देयर फादर एंड एवरीथिंग सो because since I love art, I have made एक एक इंसिडेंट हुआ which I would like to share that there's one song like 100 miles एक इंग्लिश गाना है वो हाँ the you miss the train I am gone 100 If miles ऐसा you कुछ है miss the train I'm on, हाँ you हाँ 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 know that ये I have gone. You can उस hear the whistle blow 100 miles. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four. I am 500 miles away from home. Jai Baba. Jai Baba. This song, it was in the evening. I was, because while doing that course, Montessori was very stressful because we have to write, 1,000 pages, 500 pages. You have to keep on doing PPTs and cut and paste. बहुत बहुत stressful था. तो अचानक एक गाना आया. And in my room, I have one photograph laminated, and below that there's a compassionate father लिखा हुआ है. मैंने खुद उसे लिखवाया ये लिखकर मुझे प्रिंट आउट निकालो तो दैट फोटोग्राफ इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ मी और ये गाना आया अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जब ये गाना आया ना आई फेल्ट व्हाट इज रियल रोमांस फ्रैक्शन अ वेरी टाइनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द लव what we see in this gross world love वो love नहीं है like loving the daughter or husband or parents or mother or father उससे ज्यादा एक बहुत ही कम समय फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मुझे लगा बाबा इज लव I started feeling, yes, he is the only one, you can have the divine romance. वो गाना और वो दोनों एंड आई आफ्टर दैट बाबा ऐसे ट्रेन से आए थे एक सीन है ना जो बाबा ऐसे वेव कर रहे कंटिन्यूसली इन द ट्रेन सो वो ट्रेन और इसमें ऐसा लग रहा था इट वाज सो इमोशनल इट वाज सो फैंटास्टिक डे इवनिंग इन माय लाइफ इज दैट तो मैंने वो स्केच किया है कि बाबा ऐसा है दैट
he's coming just to wave me. Come, like it was really beautiful. वो मोमेंट बहुत प्यारा लगता है मुझे, लाइक इसलिए मैं हर समय हर वक्त I make sure that I complain, I crib, I say everything to him. I don't want to do any meditation, I don't want to do any jump. Remember him and throwing all our weaknesses, give it to him. Because he said, because एक स्टोरी में ऐसा हुआ, देन यू नो बिकॉज इन ब्राह्मण्स दे डोंट गो टू टेम्पल व्हेन यू आर हैविंग योर menstrual cycle, and during the periods you don't go. They teach you as treat you like an untouchable kind of thing. They will not allow you to come out. Then when I read, Baba welcomed her food. He said, I want idli and chutney to that Maharisha's family. जो तुमने बनाया है ना वो इडली और चटनी लेकर आओ. एंड आई एम द ओशन. तुम इसमें अगरबत्ती डालो, कर्पूर डालो, फ्लावर और गंदगी भी फेंको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. इससे अलावा अश्योरेंस और क्या चाहिए? लाइक वी हैव मेडिकल इंश्योरेंस, दिस इंश्योरेंस, दैट, बट कभी वो होता ही नहीं है. लेकिन बाबा का अश्योरेंस है ना. अभी भी बहुत इनसिक्योरिटी है फॉर द सॉफ्टवेयर पीपल, जॉब चला जाएगा बिकॉज ऑफ एआई मॉडल. आई कीप टेलिंग माई हस्बैंड, बाबा हैज प्रॉमिस ना, रोटी कपड़ा से मेरा लवर कभी नहीं जाते. देन लिव इट. He will take care of it. Leave everything on his shoulder. Let's be fearless. जो आता होगा वो देखा जाएगा. Just be like that. Because if we start worrying, we'll forget Baba and we'll focus on those worries only. It's never ending. So आपने जो skit के बारे में पूछा था ना, that skit was the Doraemon is the one who grants everything to, he has one pocket, उसमें सब रहता है उसका, जो भी रहता है gadget, everything, वो तो विभा will ask, do you have love gadget? Then Doraemon की, ये love का gadget क्या होता है? होता है ना, मेहर बाबा के पास है love का gadget. So that one scene. And another scene, then he says, मुझे भी human being बनना है. So Vibha says, human being, you have to take 84 lakhs of human birth के बाद God realization मिलेगा. Then Doraemon asks, God realization मिलेगा? हाँ, लेकिन उसके लिए you have to take human birth. You know human birth कैसा होता है? There is a life cycle, तो she'll show the chart to Doraemon. इस cycle इतना बड़ा journey. Then Vibha said, शॉर्टकट चाहिए क्या? तो देन डोरेमोन से, व्हाट इज इट शॉर्टकट विच मुझे ना पता हो? ओके, टेक आउट योर एनीवेयर डोर. तो एनीवेयर डोर डोरेमोन का आता है, उसमें से दोनों जाता है. ईस्ट वेस्ट गैदरिंग आता है 1965 का. सो ईस्ट वेस्ट गैदरिंग आता है, उसमें दोनों जाते हैं. ही टेक्स बाबास दर्शन ऑन समाधि. एंड देखो, इफ बाबा's grace is there, you can really get God realization immediately in the first birth में ही मिल जाएगा in a human form. To have his nazar, you have to think of him more and more, and you have to recite his name. ज़्यादा सुनना चाहिए. And because based on that, she narrates one story. Because one day एक चींटी जाती रहती है सरदा के ऊपर, और एरिच उसको ऐसे हटाना चाहते हैं. द बाबा सेज, नेक्स्ट बर्थ में ये ह्यूमन बीइंग होगा. So that story we just told to Doraemon, that if Baba's grace is there, then you will get a human form. करके those skit we made it, and voice module मैंने किया था Doraemon का, and the narration was done by Vibha. So that was a skit. That was your first question. And the second one regarding the parents also. Parents, they never agree anything which we tell to children. उनको ऐसा लगता है कहाँ ये वो हमारे बात मानेंगे और पेरेंट्स का बात मानना ही छोड़ देंगे. सो तो इससे अच्छा मैं, जब मैं पर्सनल ट्यूशंस लेती थी पैंडमिक में, टू टीच देम, बिकॉज ऑफ द पैंडमिक 2 years गैप, उनको बहुत मुश्किल होता था टू अंडरस्टैंड व्हाट कम्स आफ्टर इवन वन, और हाउ टू राइट इट. तो जब मौका मिलता है तो आई यूज टू टेल देम अबाउट मेहर बाबा. देन ऐसा मेहर बाबा है. सो देन गॉड ब्रदर में बहुत सारे स्टोरीज है, छोटे छोटे स्टोरीज ऑफ मनी. सो उसमें से 2-3 स्टोरीज आई ट्राई टू टेल देम इन अ डिफरेंट वे, नॉट बाय इम्पोजिंग एनीथिंग ऑन देम, बट इन अ वेरी कैजुअल वे. तो वो मुझे पता है कि वो जाके पेरेंट्स को नहीं कहते हैं. सो दैट इज ऑलवेज द रिस्क पार्ट इज देयर. बट वेर एज इन अमरतिथि, ऑल आर बाबा लवर्स.
सो आई लिटरली टेल देम, तो उनको ऐसा लगता है क्योंकि मुझे इंट्रोड्यूस कैसे किया है वहां पे, ये टीचर है, ये टीचर है। जो भी पेरेंट्स आते हैं, ये टीचर है, इनका बात माना, ये टीचर है। आई टेल देम प्लीज डोंट इंट्रोड्यूस मी एज टीचर, बिकॉज ऑलरेडी वो स्कूल में इतना ये हो चुका है। अगेन डोंट इंट्रोड्यूस मी एज टीचर, आई एम अ बाबा लवर, आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद किड्स। सो उनको मैं कहती हूँ, इट्स नॉट जस्ट एन एक्टिविटी, यू आर टेकिंग बाबा विथ यू, इट्स नॉट जस्ट अ ग्रीटिंग कार्ड। I tell them, you can take Baba as anything. Baba has said, I am a mother, father, brother. So he's a real friend. You fight with your friend, right? Every day you fight with your brother and mother. But Baba will never leave you. He's your real friend. You want real friend? Then they said, yes, 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 auntie. Then I tell them, keep this real friend always with you. He will listen to you every time. He's a very good listener. He listens to everything, and he said that he's a Bolanath. He's like a child, and he will listen to you and he'll help you in everything. Before writing, you remember Meher Baba and say, Baba, I'm not the one who is writing. You're the one writing the exam. Just write it and give it. So this जब भी बच्चे ऐसा आते हैं, I like to converse. I don't want anyone to just give them greeting card, बना दो और भेज दो. The maqsad is, the purpose is to have that conversation, that personal contact with those children, to be with them, to talk to them, and spend time with them, and smilingly, lovingly have to send them, the memories of my. So last year जो भी आते थे, हर वक्त यहाँ पे आते हैं ढूंढकर, कुछ तो एक्टिविटी है, कुछ तो मैं बोलूंगी, कुछ तो दूंगी, ऐसा बोल के आते हैं। देन दे कुछ तो मेहर बाबा का इंफॉर्मेशन, आई वांट टू टेक इट विथ मी, आई वांट टू कलेक्ट दोज इंफॉर्मेशन एंड टेल देम. सो दैट्स अ थिंग. Two things I would like to narrate. One is, some time back, a lady told me a beautiful incident when she went for darshan, and there was not a fight, an argument between the Lord and she. The Lord turns around and asks her, क्यों आज नाराज दिखती हो, कुछ मांगती भी नहीं हो? तो this lady turns around and says, आपसे मांग के क्या फ़ायदा, कभी आप नहीं देते हो तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, और फिर गुस्सा आ जाता है तो मैं आपसे ये वो छोटी बड़ी बातें कर देती हूँ. सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं चुपचाप आऊँ और चुपचाप चले जाऊँ. तो ही नॉड्स एंड ही सेज, कभी कभी तो मुझे मिलने आया करो, कम जस्ट टू मीट मी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. What a profound thing. Just come to meet me and you'll never have a need to ask for anything. मुझे मिलते ही मैं तुम्हें सब कुछ दे देता हूं. That was one thing I wanted to say. And the second thing, oh, you were grumbling कि साला मेरा birthday is on Silence Day and all that. आपने कभी समाधि पे वो के पीछे में वो देखा है? Things that are real are given and received in silence. Silence. Applies to you, my dear friend. Applies to you. Yes, कि I. बाबा ने तुम्हें जन्म ही उस दिन को दिया है. You were born on the day where nothing is required to be said. सब कुछ मिल जाएगा. But in his time, not in our time. That is where I get very impatient. बाकी तो सब वो संभाल लेते हैं. Renu, I just don't know how to thank you enough, because मेरे बाजू में भी एक लड़की बैठी है. I was feeling embarrassed
कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे at certain points, and I felt the urge to ask her for a tissue, but I was too embarrassed to do any such thing. Your talk was so touching, is what I'm trying to say. ये देखिए, like I told you, I think yesterday I told you कि you just start and then he will take over. Yes, yes, uncle. Yeah, That's exactly what has happened. That's yeah. exactly what has happened. And through you, at least I have so many questions answered from your talk and all that. And वो मेरे पहलवान को एक दिन पकड़ के लेके आओ, ये एथलीट फैटलीट क्रिकेटर जो उसको मैराथन मैं कराऊंगा. अंकल यू डोंट नो, ऐसे सिचुएशन आ गया था, सब लोग कहने लगे योर मैरिज लाइफ इज गॉन बिकॉज दैट पर्सन लुक लाइक अ देवदास. ही यूज्ड टू लाई टू मी सेइंग दैट मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं डब्बा वगैरह पैक करके देती थी, लेकिन जाके ही यूज्ड टू सिट इन रामकृष्ण मठ थिंकिंग अबाउट व्हाट आई डोंट नो. I don't want to narrate his part of story because the person who suffered with the question, because he has seen lot of indifferences. मैंने भी वो देखा है, अभी भी मैं देखती हूँ स्कूल में बच्चों को दे label like anything, they treat them very badly. I want to be in this profession just because to deal with it, because still you're, if you're in that organization, then only you can do something, otherwise you don't feel like working actually, because they are not trained, they are not spiritually oriented. Because since we know what are the opposites, kind of like you have to be, agar intelligent hai to he has to be even dumb in some lifetime, like usko wo experience bhi chahiye. Actually why सभी इसमें तो रिलीजन में ये रहना चाहिए ना कि all are not same but all are one in front of him. बिकॉज मैं जब भी स्टोरीज पढ़ती थी ना अंकल, आई स्टार्टेड कलेक्टिंग 101 स्टोरीज वेयर बाबा हैज शोन हिज डिविनिटी टू प्रूव माई फादर. Because my mother, she loves Baba without reading any books, without doing anything, I she's saw come to her. I Baba. saw her there. She was standing there. She's like that, very emotional, because she lost her father at the very young age with 4 children and one son. All were girls and they were thrown out of the house. So she's seen from that stage, and my father is very reluctant, but he's a very good person at the same time, but he never understood. I used to argue with him about Meher Baba. Then I thought, just arguing ऐसे से भोंकना नहीं चाहिए. I want the content. So because of the content, I started collecting stories. How do I collect? By talking to Baba lovers, by reading stories, by collecting. It's a real treasure for me now. I've collected, I said, जितना पैसा है उतना मैं इसमें invest करूं than on anything else. So I should really collect books and keep it with me. तो अभी मैं पूरा stories collect में I used to tell my father, how is this? And बाबा जब जयनगर सेंटर में हमारा फाउंडेशन डे हुआ था, उस वक्त they asked me to narrate some stories and incident. तब मैंने collect किया, like बाबा said, you should test your master by 4 things. वो story मैंने जब मेरे डैडी के सामने कहा, फिर भी उनको समझ में नहीं आया. I don't know. Then later I came to know, like, even my grandfather had Meher Baba's book. I don't know how far it is true, or because my cousins used to tell me, knowing कि मैं अभी मेहराबाद जाती हूँ, तो उन्होंने कहा even our our tata, like grandfather, he has read Meher Baba's book. Then why didn't he tell us? Because since he was not at all related to this orthodox kind of thinking, he believed in Sai Baba so much, he used to chant all the time Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram. And he used to write free accounts. Since he was a chartered accountant, he used to write all the accounts and ledger in Sai Mandir. And before, because one incident that happened in, hospital, because he had a lot of dental problems. So he wanted to change the whole, वो दांत नकली दांत लगाते ना उम्र के बाद. So that the doctor was trying to operate him. He was so thin, he was so disciplined, he used to do yoga, everything. And he's always used to chant Vishnu Sahasranam, everything. So I learned many things from him. Seeing him only, I started coming to Sai Baba. So he
even in the sound, he was reciting Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram continuously. But the whole pura bone structure ही बाहर आ गया because he was so thin, he didn't support. Oh my So goodness. डॉक्टर ने पूरा all those tools को नीचे छोड़ के he just stood because he said I'm gone. मैं मुझे तो फांसी लग जाएगी अगर मैंने ऐसा किया तो उस वक्त he was chanting Sairam Sairam. He said it started, my hand started moving, अपने आप मूव होने लगा. मैंने ऑपरेट किया, मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कैसे ऑपरेट किया. That his grandson is handling the hospital now. He said when we went there to for the checkup, he narrated that story to me. So somehow that link is there of a Sadguru and all these things, all this like a tailspin. I was moving everywhere and so many this thing imagination. That's why I want to target on kids because I know सभी बच्चे में ये रहता है लेकिन दब जाता है बिकॉज उनको बोलने के लिए ये नहीं रहता पढ़ाई 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 एटलीस्ट इन अ डे इफ यू डोंट स्पेंड अ 5 minutes टू टेल देम समथिंग अबाउट गॉड कब वो बहुत देर हो जाएगा हु नोस कब वो वक्त आएगा या नहीं आएगा पता नहीं so I want to at least do something in that field and tell them all this that it's so important to think of Baba and May to Baba read and bless you narrate for it. it. May Baba bless you for it. And all your wishes be fulfilled. Is all. Jai Meher Baba uncle. Jai Baba. We have now come to the conclusion of our program. All I can say is thank you, Baba. Thank you, Thank Baba. you, Renu. And thank you, that Pelwan who put you on to Meher Baba after discovering him for himself. So, Baba has his own ways of getting people around in a most natural way. All I can say is don't worry, be happy. Yeah. And next time on the Silence Day, I will send you a silent message for your birthday. Jai Baba. Jai Meher Baba uncle. Jai Baba all. Jai Baba. We shall now do the prayers, Aarti. Then we will hold a minute's silence and then we shall disperse. Thank you, everybody. I hope you enjoyed. Jai Baba. अवतार मेहर बाबा की जय. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes.
You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the Ancient One, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Elahi, Yazdan, Ahura Mazda, and God the Beloved. You are named Izzat, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most specially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba Ki Jai. भुजावे नार जहलतनी कर खुद रत्ने फरमातू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू अयामुर शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाकिफ थई बै तो मेहर बातू तू छे माँ लिख हकीकत नो तू आशिक भी ने आरिफ भी तुझे दरी याए वहदत मारे फतनो हो ही तूफातू हमोर है रब ने सालिक बखश्ते ज्ञान इज़दनु के तू पर मातमा ज्ञानी छने मोक तारे रफातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सद के साखिया पी दे पैमा तू हमारी नाव पर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा मेहर बाबा छनिगे बात
बुझावे नार जहलत नी कर खुद रत्ने फरमातू छलागी आश भक्तों ने के बाक्षे नूरे मातू। अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दयाधन, दिव्य सनातन परम दयाधन, हे जगदूद्वारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम राही तुमको लौटाना, काहे बड़ाई करूं मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो, तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुमरी माया, माया भी तो तुमरी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत खरो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुमरो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुमरी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमरो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाधन, दिव्य सनातन परम दयाधन, हे जगदूद्वारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय।
प्रियतम अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba, everybody. We now come to closure of this program. I hope, rather we hope, that you all enjoyed participating in it as much as we have enjoyed sharing Baba's love amongst all of us. Thank you and Jai Baba. Until we meet again, keep Baba with you. Jai Baba. Jai Baba, uncle.